So let's go on to the last sum, page 215. The last sum, page 215. Meet, Jeet, Neil are the partners sharing profit and loss in the ratio 3:1. The balance sheet of the firm as on 31/3 is as under. Capital account of Meet, Jeet, Neil, general reserve, investment fluctuation, compensation, profit sharing, saving. क्या से बधाच रिजर्व की समरी आपी दी थी जामा. एक भी ऐसा रिजर्व छोड़ा नहीं है इन्होंने जो हमने प्रीवियस सम में देखा ना हो. और इसलिए मेरा ये सम तुम्हारे साथ करना जरूरी है ताकि तुम्हें कितना आया एट द एंड ऑफ द चैप्टर मुझे भी पता चल जाएगा. The last one is what? Creditors. On the asset side we have building, machinery, investment, debtors, stock and cash. On the above date they have admitted here as a new partner on the following. Meet sacrifice 1/8 share and Neil sacrifice 1/24 share from. Underline the word from. अच्छा बेटा word from हो है तो what does this indicate? This 1/8 and 1/24 that itself is the sacrifice ratio. If the word given is what? From. If the word given is what? From. अच्छा word अगर off होता तो what is off? तो whatever this ratio is given हमको वो old ratio के साथ multiply करके sacrifice ratio मिलेगा. Yes or no? Yes or no? Then goodwill is valued at how much? 60,000. He will bring her share of goodwill in. Now market value of investments are how much? Which is to be shown in the books. Then workman compensation को टिक करो, मशीनरी को टिक करो, बिल्डिंग को टिक करो. Then sixth वाला तो हीर वो कैश लेके आ रही है. And the capital of all the partners shall be proportionate to their new profit and loss ratio, taking हीर का capital as base. The same working we did for Hensi, if you remember. कि Hensi के capital को क्या लेके चलो? Base. The necessary effect is to be given in cash. The necessary effect is to be given in cash. तो तुमने टिक किन-किन को कर लिया? Investments को टिक कर लिया? Yes. What about workman compensation? टिक कर लिया? Yes. Then what about machinery? Building? Okay. Let's start. कौन-कौन से लेक्चर बनेंगे? Evaluation, cash, partners, capital आने. But what's the first thing to do? First thing. So give the heading. Working note number 1. Working note number 1. Calculation of sacrifice ratio. Calculation of sacrifice ratio. Meet. पची कौन से? जीत. हाँ. Meet. अरे हीर. हाँ बेटा नील कर दे रहे हैं तो उस पर टेंशन क्या ले रही हो? मीत हो के नील हो दोनों ही नल्ले हैं तुम जैसे. What's my old ratio? What's my old ratio? 3:2:1. That is 3/6. 2/6 अने न्यू रेशियो अपने को पता नहीं है. सैक्रिफाइस रेशियो के लिए क्या बोल रहे हैं वो लोग जरा बताओ. सैक्रिफाइस रेशियो के लिए मीत ने कितना सैक्रिफाइस करा? मीत ने 1/8 और शब्द क्या दिया है? फ्रॉम. द शब्द गिवन इज फ्रॉम हिज शेयर. फ्रॉम. પછી જીતે સેક્રિફાइस કર્યો કે नीले? तो कहना से जीत का सैक्रिफाइस कुछ भी नहीं है और नील का सैक्रिफाइस कितना है? 1/8.
Again, the shabd is what? From his share. तो बेटा इसका sacrifice nil है. Yes or no? Now tell me one thing. This is 1 by 8. This is 1 by 24. Denominator same है. So denominator को same करने के लिए क्या करो? 1 by 8 into if I do 3 and if I keep this as 1 by 24 only, so 3 by 24, 1 by 24. So what would be my sacrifice ratio? But what would be my sacrifice ratio? 3:1. 3:1. And can I say whatever these two partners are sacrificing, उतना हीर को प्रॉफिट में शेयर मिलेगा? So इन दोनों को मैं प्लस करूं अगर 3 by 24, 1 by 24, that comes to, can I say हीर को नए प्रॉफिट में उतना रेशियो मिलेगा? And मीत एंड नील का सैक्रिफाइस कितना बैठेगा? 3:1. मीत और नील का सैक्रिफाइस कितना बैठेगा? 3:1. But now 5 minutes. Come on, make the format. 4 वस्तुओं फटाफट बनाओ. Revaluation account, cash and bank, partners capital, and last what do we draw? The balance sheet. बेटा डिनोमिनेटर सेम करने के लिए किया क्या समझ में आ रहा है? We multiplied it with by 3. So 3 by 24, 1 by 24. Three by 24 and 1 by 24. Let's start. I'll also make the format, and as I said, we'll be doing the sum together. We'll be doing the sum together. Revaluation account. Cash and bank account. Then we have partners capital account. But partners capital में make sure you make how many partners? 4. So particulars कौन है? जीत, मीत, नील और हीर. जीत, मीत, नील और हीर. जगह छोड़ दिए मैंने तो नाम भी पूरे आ जाएंगे. सो जीत, मीत, नील एंड हीर. Then here particulars जीत, मीत, नील and here. This is credit, this is debit, and the last balance sheet after admission. The balance sheet after admission, liabilities amount, asset amount. Liabilities amount, asset amount. But our 4 partners are coming together. But are you getting it?
Are you getting it? Great. बेटा स्टार्ट करें? बेटा स्टार्ट करें? Let's begin. First, capital of meet, Jeet, Neil. Come on. Partners capital. Which side? Credit side. Buy balance brought forward 1,75,000. एक मिनट, तो मैं यहाँ पर इसको मीट कर दे रहा हूँ. This is meet and this will become जीत. जिस फॉर्म में बेटा उसको उसी में रखो, नहीं तो फिर वो P&L का रेशियो भी चेंज हो जाए ना. तो इसलिए मैंने वो मीट जीत जो लाइन सर है उस तरह से लिखेंगे. यहाँ पर भी मैं चेंज कर दे रहा हूँ. तुमने क्या करा है? गलती जैसे ऑर्डर है वैसे ही लिखा है. बढ़िया. स्कॉलर बैच. जनरल रिजर्व का क्या करूं जरा बताएंगे? जनरल रिजर्व क्या से पार्टनर्स में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. तो जरा डिस्ट्रीब्यूट करो जनरल रिजर्व. व्हाट वाज द रेशियो गिवन? 3:2:1. तो 12,000 को जरा बांटो. 6,000 4,000 અને 2,000. 6,000 4,000 and 2,000. बेटा इन्वेस्टमेंट्स के रिलेटेड एडजस्टमेंट है. सो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, write it in the inner column because इन्वेस्टमेंट का वैल्यू कम हो रहा है तो वो अपने देखेंगे. देन वर्कमैन compensation reserve, how much is the amount? 15,000. we keep it in the inner column. but what about the workman profit sharing fund? ये क्या होता था? वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग, इट्स आवर लायबिलिटी. क्या बोला है हमने अपने वर्कर्स को? क्या बोला है कि बेटा काम करो, अच्छा काम करो, हम तुमसे अपना जो भी प्रॉफिट है वो शेयर करेंगे. वर्कमैन प्रॉफिट शेयरिंग फंड 35,000 outer column. then workman, what is saving account? beta saving account. can I say they have opened a saving account with our organization. और ये पैसा सारा किसका है? तो जो हमें वर्कर्स को वापस दे देने हैं. सो क्रेडिटर्स वर्कमैन सेविंग अकाउंट के बाद 40 इट्स आवर लायबिलिटी. क्रेडिटर्स कैन आई से दैट इज आल्सो आवर liabilities 23,000. that also our liability 23,000. then next is building. how much is my amount for building? keep it in the inner column. next is machinery. how much is the amount of machinery? 80,000 inner column. investments 60 again in the inner column. debtors, do we have any adjustment? No. how much is the amount of debtors? 40,000. stock, any adjustment of stock? 64. what about cash?
Can I say cash would be going to cash and bank column? To balance brought forward, कैश अकाउंट में 26,000, कैश अकाउंट 26,000. Yes or no? Yes or no? But I'm waiting. But I'm waiting. Are the postings done? Are the postings done? See the first wala adjustment. Have we done with that? फर्स्ट वाला हमने कर लिया. फर्स्ट वाला हमने उससे वो रेशियो ढूंढ लिया था सैक्रिफाइस. सेकंड एडजस्टमेंट पढ़ते हैं. चलो, गुडविल इज वैल्यूड एट हाउ मच? 60,000. But I have already told you, whenever you see this, goodwill is valued at how much? 60,000. तो this is total goodwill value. क्या है ये? तो वो टोटल लेने का पर्पस क्या रहता है? यहाँ से हम नए पार्टनर का गुडविल का शेयर फाइंड आउट करें. और देखो हीर वो शेयर कैसे लेके आ रही है. So give the heading, working out number 2. Calculation of share of goodwill. Can I say total goodwill is how much? 60,000. 60,000. उसमें से हीर का शेयर हमने फाइंड आउट करा. इट वाज 4/24. 10,000 है. हीर का शेयर कितना है? 10,000. धर्माक्षी, गुडविल की एंट्री क्या आएगी? वो कैश में लेके आ रही है. कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल. बस premium for goodwill to in which ratio? Better write the entry. I'm not going to write it on board. Please write the entry. Cash account debit 10,000. Cash account debit 10,000 to premium for goodwill 10,000. बड़ा ये फर्स्ट एंट्री की लेक्चर पोस्टिंग कहां जाएगी? फर्स्ट एंट्री की लेक्चर पोस्टिंग कैश में डेबिट साइड. बहुत बढ़िया. टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितना आएगा? टू प्रीमियम फॉर गुडविल 10,000. टू प्रीमियम फॉर गुडविल इज 10,000. Then second entry क्या लगी तुमने? प्रीमियम फॉर गुडविल टू मीत कैपिटल टू नील्स कैपिटल. बड़ा अमाउंट कितनी है? अमाउंट 7,500 है. 2,500. So buy प्रीमियम फॉर गुडविल. मीत में 7,500 और नील में 2,500. मीत में 7,500 और नील में 2,500. ओके ओके. But I hope the effects of goodwill are properly done. और तुम्हें याद भी रह रही है. हाँ कि ना? एक ये कैश टू पे मैंने પછી पार्टनर्स कैपिटल में ऑन द क्रेडिट साइड. नेक्स्ट वाला जरा देखो. मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हो कितना गया? 52. कहना से अभी की वैल्यू है कितनी? कहना से फ्लक्चुएशन आया. क्या आया? कितना फ्लक्चुएशन आया? 8,000 का फ्लक्चुएशन आया.
बट कहना से इसी फ्लक्चुएशन के लिए हमने बनाया क्या था? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, और उसमें अमाउंट कितनी है? 20 है। तो कहना से 8000 आराम से एडजस्ट हो जाएगा, 8000 आराम से एडजस्ट हो जाएगा। तो चलो पहले कर लेते हैं, लेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 8000, सो आउटर कॉलम कितना जाएगा? 52। यहां पर मैं लिख दूंगा लेस इन्वेस्टमेंट 8000। बेटा बचे कितने? 12। अब बेटा हाथ ऊपर करो, ये 12 का करूं क्या? ये 12000 का होगा क्या? क्यों डिस्ट्रीब्यूट? This is an excess reserve which is left after adjusting. This is excess, तो यहाँ पर लिखो distribute amongst partner 12000. So outer column कितना हो जाएगा? nil. outer column कितना हो जाएगा? nil. अरे बेटा पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करो, चलो बाय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। बेटा 12000 है तो 6 4 अने 2, 6000 4000 अने 2000। क्या बोलते हो बेकार? सही है सर, सही है। But can we go to the next adjustment? Yes. Can we go to the next adjustment? Yes. वर्कमैन का क्लेम कितना एक्सेप्ट हुआ? 80,000 का। जबकि यहाँ पर जरा ध्यान, हाउ मच इज द कंपनसेशन? मतलब हमने तैयारी कितने की करके रखी थी? 15। बट हाउ मच इज द लायबिलिटी नाउ? हाउ मच इज द लायबिलिटी? तो कहना से मैंने तुमको सिखाया है, सीधा पहले 18,000 बाहर लिखेंगे हम, 18,000 हम बाहर लिख देंगे। मतलब 15 की तो तैयारी हो गई थी, कहना से और 3,000 लाने पड़ेंगे। तो और एडिशनल जो 3,000 लेके आने पड़ेंगे, वो अपना क्या है? वो अपना क्या है? लॉस, बिकॉज whatever was my liability now it is increasing. तो एडिशनल लॉस will go to which account? Revaluation account. The additional loss of 3,000 will go to, so revaluation के डेबिट साइड लिख देंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 3,000। बेटा थर्ड एंड फोर्थ, कैन यू सी द डिफरेंस? थर्ड एडजस्टमेंट में और फोर्थ एडजस्टमेंट में डिफरेंस पता चल रहा है। थर्ड वाले में क्या था? एडजस्टमेंट सेट करने के बाद एक्सेस रिजर्व बचता था, जो मैंने क्या करा? पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जबकि यहाँ पर कंपनसेशन में क्या है? जितना रिजर्व बनाया वो सफिशिएंट कम पड़ा, तो और जो पैसे लाने पड़े वो मेरा एडिशनल लॉस है, जो हमने किसमें सेट करा? रिवैल्यूएशन में। नेक्स्ट वाला जरा देखो, मशीनरी की वैल्यू कितनी हो गई है? 60,000। ये बड़ा मेरा प्रॉफिट हुआ के लॉस? प्रॉफिट हुआ के लॉस? कितने का लॉस हुआ? सो 20,000 का लॉस है ये। सो इट्स 60,000। बेटा रिवैल्यूएशन में कौन सा साइड? रिवैल्यूएशन में कौन सा साइड? 2 मशीनरी कितना? 20,000। कितना? 20,000। बड़ा बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई? बिल्डिंग की वैल्यू
क्या करूं? बिल्डिंग में क्या करूं? क्या ना से रिवैल्यूएशन 26,000 हम प्लस कर देंगे and a revaluation account में it will go on to the credit side 26,000. फिर जरा मुझे बताओ क्या बोल रहे हैं? हीर कितना कैश लेके आ रही है? 50,000. हीर कितना कैश लेके आ रही है? But this is the last sum. Do I make you write this entry or you don't know that? हीर कैश लेके आ रही है कैपिटल के लिए. कैश टू लिखा जाए. कैश अकाउंट डेबिट टू हीर्स कैपिटल. कैश अकाउंट डेबिट टू हीर्स कैपिटल. सो कैश एंड बैंक में कहा? हीर्स कैपिटल ऑन द डेबिट साइड. कितना लेके आया? 50,000. अरे पार्टनर्स कैपिटल में बाय कैश इन द कॉलम ऑफ हीर 50,000. बाय कैश इन द कॉलम ऑफ हीर 50,000. But yes or no? Yes or no? Let's go to the last wala adjustment. Mark it very important. Let's go to the last wala adjustment. क्या बोल रहे हैं जरा पढ़ो. नवे पार्टनर्स ने क्या डिसाइड करा कि हम अपना जो कैपिटल है वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में रखेंगे. वो भी 90 वाला. वो भी कैसा? और किसके कैपिटल को बेस लेके चलेंगे? हीर के कैपिटल को. मतलब वो जो 50,000 लेके आई है उसको हम अपना क्या मान के चलेंगे? बेस. अब देखो हमने जो पहली वर्किंग करी उसमें सिर्फ हमने क्या ढूंढा? सैक्रिफाइस. वी डिड नॉट फाइंड न्यू रेशियो. तो पहला ए फाइंड करिए. चलो फरी बार गिव द हेडिंग. वर्किंग नोट नंबर શું છે? 3 के 4. वर्किंग नोट नंबर 4. कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो and calculation of new ratio and closing balance of capital. Calculation of new ratio and closing balance of capital. अब बेटा यहाँ ध्यान. हमने मेहनत कर ली है. कौन कौन से थे पार्टनर? मीत, जीत, नील, हीर. What was the old ratio given to us? 3:1. 3:2:1, which was 3/6. 2/6 and 1/6. कहना से न्यू रेशियो मेरे को फाइंड करना है, लेकिन हीर का हमने ऑलरेडी फाइंड करके रखा था 4/24. जरा मुझे सैक्रिफाइस रेशियो बताओ. मीत का कितना आ रहा था? 3/24. अने जीत ने तो कुछ भी सैक्रिफाइस नहीं करा. नील ने 1/24. अब जरा मुझे बेटा हेल्प करो. न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या बनेगा? जितना ओल्ड था उसमें से सैक्रिफाइस माइनस करूं कि प्लस करूं? माइनस के प्लस माइनस. हमने मीत ने इसमें से इतना सैक्रिफाइस करा तो जाके हीर को शेयर मिल रहा है. सो न्यू रेशियो का फॉर्मूला क्या है? ओल्ड माइनस सैक्रिफाइस. तो बेटा मेरा ओल्ड है 3/6 અને આ છે 3/24. હવે બેટા જરા बुद्धि चलाओ. यहाँ पर वो एरो वाला मत करना, बिकॉज 6 અને 24 માં LCM શું આવી શકે? 24, क्योंकि वो 6 के भी टेबल में है, 24 के टेबल में है.
मैं एरो करने के लिए क्यों मना कर रहा हूं? बिकॉज यहां पर देखो मैंने हीर का आंसर किसमें लिखा है, तो यहां पर सबका आंसर 24 24 24 में चाहिए। yes. हम यहां तीर चलाएंगे तो यहां पर हीर का भी फिर आंसर को वेरिएशन लाना पड़ेगा, जो थोड़ा और कैलकुलेशन लेंथी हो जाएगा। लेकिन इतना तो तुम समझ रहे हो ना, 3/6 और 3/24, तो 24 6 के टेबल में भी है आने, तो क्या ना से एलसीएम सीधा 24 वही ले लो बेटा। 6 4 24 6, सो वो 4 को ये 3 के साथ ऊपर मल्टीप्लाई करने का, सो इट्स 12 माइनस 24 इंटू 24 1, सो 1 को ऊपर 3 के साथ मल्टीप्लाई करने का, सो कितना आ रहा है? सो यहाँ पर मीट का रेशियो कितना आ गया? 9/24। सर आए एलसीएम नहीं खबर पड़ती है सर, मारो मगज इतना अच्छा है, अब मैं समझा तो नहीं आऊँ बेटा। एनी डाउट इन दिस रेशियो, इन दिस LCM portion please? કઈ તકલીફ હોય તો પૂછી લો ભાઈ। 6 અને 24 માં LCM 24 એટલે લેવાનો કેમ કે બંને ના ટેબલમાં 24 કોમન છે, so that is why it is called LCM is least common multiple, least common multiple. Are you getting the beat? तो 6 4 सा तो ये 4 ने ऊपर 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, 24 1 सा तो ये 1 ने ऊपर આ 3 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરવાનું, એટલે પછી આન્સર નીકળે। कहना से जीत अपने लिए लाइफ सेवर है। 2/6 માંથી नील माइनस करो तो કેટલા રહે? कॉमन सेंस है, પૂછવાની જરૂર નહીં, આટલું તો મને આવડે। इट इज 2/6, પણ જરા ध्यान इधर 24 इधर 24 इधर 6 चले, क्या करूं? इंटू 4 कर दो, सो ये हो जाएगा 8/24। बेटा डिनोमिनेटर बदला 24 करवाना चलिया। हवे चला नील उसका न्यू रेशियो फाइंड करते हैं। 1/6 माइनस 1/24। बेटा मैं नहीं बताऊंगा कि क्या एलसीएम आएगा, तुम बताओ। कॉमन सेंस सर અહીંયા તમે 24 લીધું તો અહીંયા એટલી હોય નહીં યાર, તો 6 4 सा, सो ये 4 ने आ 1 સાથે મલ્ટીપ્લાય કરીએ એટલે 4, 24 into 1 is 24, so the answer what you get is, so यहाँ पर नील का शेयर आएगा 3/24। बेटा रेशियो की मगजमारी को समझ रही है, रेशियो की मगजमारी को समझ रही है, यस और नो, यस और नो? भाई बाद में आओ, नेक्स्ट वीक बोलो, नेक्स्ट वीक। 9/24 और 3/24 ये करके हम जो न्यू रेशियो लेके आ गए वो पता चला, दैट इज 9/24 8/24 3/24 और 4/24, ये न्यू रेशियो आ गया, पता चला। अब हम क्या फाइंड आउट कर रहे हैं? तो चलो फाइंड आउट करिए। क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैपिटल किसको बेस लेके चलना है? हीर के कैपिटल को। तो यहां जरा ध्यान, हीर के कैपिटल को हम अपना बेस लेके अगर चल रहे हैं तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस में अभी मैंने कितना हिस्सा दिया? प्रॉफिट एंड लॉस में अभी उसको कितना हिस्सा दिया? और उसके लिए वो कैपिटल कितना लेके आई है? 50,000। तो पहला पार्टनर कौन है? मीत। तो मीत 9/24 के लिए कितना लेके आएगा?
मीत बेटा 9/24 के लिए कितना लेके आएगा? So can I say 50,000 into 9/24 into 4/24? 112. बहुत बढ़िया। फिर जीत को कितना प्रॉफिट दिया मैंने? So नल्ला जीत 8/24 के लिए कितना लेके आएगा? अपने को हीर का ही कैपिटल बेस बना के चलना है, हीर का। So again 50,000 into 8/24 divided by 4/24, तो वो कितना लाएगा? 1 लाख। नील का कितना है? 3/24 के लिए कितना लेके आएगा? So 50,000 into 3/24 37,500. बेटा एक જ વારમાં ત્રણેયનું ફાઇન્ડ કર્યું એ ખબર પડી? હીરના કેપિટલ ને બેઝ લઈને કે બધામાં એવું લખું? हीर को 4/24 के लिए 50, तो 8/24 के लिए कितना? हीर को 4/24 के लिए 50, तो 3/24 के लिए कितना है? वो बधाમાં લખું? तुम तो कैसे हो? Very good scholar, thanks. मैं बेटा मना कर ही नहीं सकता हूँ। बेटा हीर की कैपिटल का बेस लेके जो दूसरों का कैपिटल फाइंड आउट करा वो है क्या? इट्स द क्लोजिंग बैलेंस। इट्स द क्लोजिंग बैलेंस। तो एवं बताओ તમને હા કેવી રીતે લખવાનું ક્લોઝિંગ બેલેન્સ? પહેલા આટલું ફળફળાટ કોપી માર લો। बेटा ये सिम का दरवाजा बंद कर सकता हूँ ताकि उधर से कुछ लाइट करे। तुम आराम से कॉपी मारो। ऐसा कैलकुलेटर पर खुद से करने का ऐसा किसी ने नहीं बोला है। ऐसा कोई बोल ही नहीं सकता है कि वो जाते जीवन में इच्छा रहे कि यार 40 रुपए हो जाए। बड़ा हो गया now as I said it's which balance? It's which balance? But where do we show it? Partners capital na debit side closing balance मीत का कितना आ रहा है? 112। जीत 1 લાખ। નીલ અને હીર નું આવે છે 50,000। अब हमको एडजस्टमेंट में क्या बोला कि अब जब हम ये डेबिट क्रेडिट का टोटल करेंगे और कुछ भी डिफरेंस आया वो डिफरेंस किसमें सेट करना है? किसमें सेट करना है? लेकिन वो डिफरेंस फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले किसे क्लोज करूं? बड़ा रिवैल्यूएशन अकाउंट क्लोज करो। 26,000 बेटा 3,000 you are getting as your revaluation. It's your revaluation profit. मी जीत नील में डिस्ट्रीब्यूट करो। 1500 1,000 અને 500। सुबह पार्टनर्स कैपिटल में वो लिख देंगे
1500, 1000 અને 500. बट आप मुझे सबसे पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना पड़ेगा. बेटा सबसे पहले आप अपने को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बंद करना पड़ेगा. तो जरा कंपेयर करो, मुझे मीत के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल दो. डेबिट एंड क्रेडिट साइड का टोटल. बेटा डेबिट का चलो मैं करके दे दे रहा हूं. क्रेडिट का कितना आ रहा है? क्रेडिट 1,21,000. बेटा सो मीत के कौन से साइड का टोटल ज्यादा है? कई साइड નું ટોટલ વધારે છે? सो मैं क्रेडिट साइड का टोटल लिखूंगा 1,21,000 और उसमें से ये 1,12,500 माइनस कर दो. कितना है? बेटा ये डिफरेंस को उन्होंने बोला कैश में एडजस्ट कर लो. अब बेटा यहां ध्यान, here the cash is on the debit side, so cash बैंक में कहां जाएगा? क्रेडिट साइड. एंड क्रेडिट साइड का मतलब क्या कि मीत पैसा घर लेके जा रहा है बिकॉज वो ज्यादा कैपिटल लेके आया, वो ज्यादा पैसे लेके आया, इसलिए 8500 वो अपने घर लेके जाएगा. कैश के क्रेडिट साइड का मतलब बिजनेस में से पैसा गया. किसको गया? मीत को. किसको गया? उसी तरह से जीत के डेबिट और क्रेडिट साइड का टोटल करो. बेटा डेबिट टू 1,06,000, क्रेडिट टू 84. नाउ बेटा यूज योर ब्रेन. कई बाजू टोटल વધારે લાગે. सो डेबिट साइड का टोटल पहले लिखने का, सेम टोटल क्रेडिट में हम लिखेंगे एंड अमाउंट आ रही है कितनी? 16,000. और बेटा ये जो 16 आया डिफरेंस, उसके सामने क्या लिखूं? बाय कैश. बाय और कैश अकाउंट में कौन सा साइड जाएगा? डेबिट साइड. क्या लिखो? 2. जीट्स कैपिटल 16,000. मतलब आप जरा मेरे को ये बताओ, इट्स देयर ऑन द डेबिट साइड. व्हाट डज दैट मीन? कि जीत को पैसे लाने पड़ेंगे. 16,000 जीत को पैसे टू मेंटेन दिस क्लोजिंग बैलेंस, उसे पैसे लाने पड़ेंगे. नील का जरा मुझे टोटल बताओ, डेबिट और क्रेडिट का. डेबिट इज 37,500, 57,000. सो बेटा क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा है 19,000. बेटा वो डिफरेंस हम कैश में लिख देंगे. And again it's on the debit side in the partner's capital. Here on the credit side. 19,500. So need capital 19,500. बेटा पैसे लेके गया कि लेके आया? लेके गया. गया कि आया? इट्स अ क्रेडिट साइड, तो पैसे गए. इफ इट इज ऑन द डेबिट साइड तो पार्टनर को पैसे लाने पड़ेंगे. कहना से हीर का तो कोई टेंशन नहीं है. कहना से 50,000 on both the side. 7,000 है. यहाँ पर ओके. प्रेशर आप कैश एंड बैंक का लेक्चर क्लोज करो. चलो इधर कितना आ रहा है?
74. 1 lakh. 1,02,000. And 74 is my closing balance. But where do we show this closing balance? Asset side. Cash and bank balance 74. एंड बेटा ये जो पार्टनर्स कैपिटल के क्लोजिंग बैलेंस आए वो मैं लायबिलिटी में लिख दूंगा मीत, जीत, नील અને હીર 112,500 8,37,550,000 416,000 416,000 Beta, that is where our balance sheet will be tallied. 416,000. But any difficulty in finding out this closing balance and all? No. Keeping Heer's capital as base? Sure. But sure. Yes. But I'm waiting, complete the sum. We don't have such type of illustration, so nothing to be done in homework. Nothing to be done in